Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible enough? Yes, Alhamdulillah, you are. Okay. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yesterday we cleared about Jibt, Awthan, As-Sanam, and Taghut. Any confusion in yesterday's chapter? And I've been receiving some very interesting responses in regards to the homework activity. Actually, with that homework or whatever activity I give you, I understand what is your understanding on the subject. So I received quite a few variety of answers, and I was hoping for some more, but then maybe sisters are busy. I don't force anyone for any homework, but most of them, if I may summarize the responses, most of them said कि अगर intention हमारी ठीक है, so there is no problem. Now my question is, actually we have discussed this in the previous sessions, but just to remind everyone, if my intention to do an act of kufr, or if my intention to do an act of shirk, will that good intention validate my actions? Answer me, please. Will my good intention validate my actions of kufr or shirk? No, of course not. Of course not. For example, I'm looting rich people to do charity for the poor. Is it a good action? My intentions are very good. I want to help the poor. But the ways and the means that I am taking, is it permissible? No. Precisely. Now, for all of those who said that Taj Mahal is a touristic destination, so there's no harm in visiting it, traveling it. But taking into consideration that it's a grave, then just for the heck of traveling or just for seeing the beauty or whatever, does it validate? The maximum opinion is that it does not. And even if you don't find evidences as such pinpointing to that place, but in general going to the graves, and then since that place, I don't know how many of you have visited Taj Mahal. I have visited a couple of times when I didn't know about it, of course, but a lot of other stupid things happens there. So that is the issue, that even if you are not worshipping there, you are not going with an intention, or you're not actually worshipping there, but the activities that happens, huge crowd mixing up and things like that, so it is better to avoid. In regards to Karbala has a different belief system. Of course, we are not belonging to the sect who literally worship the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but once again, it is not permissible to pray at the graves or to take them as masjids, and because that is a means that leads to shirk, we are trying to go take two steps behind, not actually committing the sin or committing the shirk and billah, but even roads that will lead to shirk. So that also we have to block. And worshipping someone other than Allah by calling upon them, seeking their help, making vows to them, touching the graves, seeking their blessings, etc., etc., is definitely forbidden. But people out there, out of the love and out of the reverence for the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they get overwhelmed. They get overwhelmed and they get involved in such a thing. So definitely, avoiding is the best method. Avoiding is the best thing to do. You can pray for the deceased, you can send and seek forgiveness from wherever you are. That involves even sending salam to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitting wherever you are. So overall opinion is that it is not recommended to visit these places, even if your intention is solely to just move around and look around at one of the tourist spots. It is not recommended. Baki Allahu Alam, but this was the final word in regards to those two places. So my advice to you would be, as far as possible,
even if the road leads to the shirk or some sin or some kufr and things like that, avoid it, and may Allah protect us. Okay, going forward, today what do we have? Today we have discussed this in level 1, but again we go deeper. For those who have attended level 1, it is again a reminder. For those who haven't attended level 1, it will be the first face off. So inshallah we'll continue with this. Since sorcery is an act of shirk, we have to cover that chapter. Okay, again we have to elaborate on it and warn Muslims against its destructive consequences. यानी ये जो जादू है ये शिर्क माना जाता है, इसलिए हमारे ये अकीदे के चैप्टर में ये बार बार इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जब तक कि हमें वार्न नहीं किया जाएगा, ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर कंसिडर्ड एज शिर्क, we might intentionally or unintentionally be involved or engrossed in it. So let's understand what it is. What is sihr? What is sorcery? Linguistically, it is something whose cause is hidden, जो छुपा हुआ है. ओके, लघवी माने में छुपा होना. इससे ही असुहुर का वर्ड भी निकलता है. रात के अंधेरे में हम जो मील लेते हैं फास्टिंग में, even that's called suhoor, because the activities that take place in that period are usually hidden. The sahur pre-dawn meal for fasting is similarly named because it takes place out of sight. Therefore, everything whose cause is hidden is called sihr. In Sharia, charms, evil incantation, drugs, smokes or knots, यानी तावीज़ें, कोई चीज़ों को घर में, गाड़ी में, दुकानों में लगाना, कोई तंत्र मंत्र ईविल वाले, ड्रग्स, कोई स्मोक, कोई धुनी, कोई गांठ मारना, जिस पर सॉर्सरर्स जो है वो दम करते हैं, जिसका इफेक्ट हार्ट और बॉडी पे होता है, जिसके वजह से डिजीजेस हो जाती है, डेथ हो जाती है और रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं. ये वो चीज़ें इतनी पावरफुल हैं. तो ये वो सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं जिसे हम सॉर्सरी या मैजिक कहते हैं. नॉट्स और मंत्र जो है, दैट इज conjurations and talismans with which the sorcerer employs the devils regarding the harm he intends to afflict the bewitched one. यानी एक होता है, इसके दो काइंड है. एक वो है जिसमें डायरेक्टली डेविल इन्वॉल्व होता है, और ये कुछ दम करके, कोई अमल पढ़ के, कोई तावीज़ों पे या कुछ वो धागों पे कांटे मार के डेविल को पीछे लगाया जाता है और ये काम कराया जाता है. इसमें डेविल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व. As Surah Al-Baqarah, verse number 102, but they could not thus harm anyone except by Allah's will. यानी एंड ऑफ द डे Allah's will is important. अब आप बोलोगे कि अल्लाह की मर्जी इसमें क्यों शामिल है कि हमारे लिए हार्म पहुंचे. इट इज अगेन नॉट Allah's will, यानी अल्लाह नहीं चाह रहे कि आपका नुकसान हो, मगर it is a part of a qadar, and part of a qadar is, it means that Allah has the knowledge of it. He does not intend for any shar for us, but we have to understand on a macro level कि हर शर के पीछे खैर है. Okay, so there is khair behind every shar, and nothing can move until and unless Allah की मर्जी है. So Allah की मर्जी doesn't mean that Allah intends harm for us, but it means that He is aware of it and He is the ultimate power. And sometimes He lets things happen because आखिर में जाकर जो उसका रिजल्ट होगा, that our khair for us, it will be khair for us. So second type जो है वो ये है कि कुछ substances use होते हैं, मसलन कोई medicine that affects the body of the bewitched, उसकी इंटेलेक्ट, उसकी विल, उसकी इंक्लिनेशन के ऊपर वो भारी हो जाता है. यानी कि उसकी सोच, उसकी बॉडी, उसके ऊपर वो असर कर जाती है. वो जो पर्टिकुलर दवा होती है, या दवा या धुनी या कोई ऐसी शय, टैंजिबल थिंग. सो सॉर्सरी मैजिक के लिए वर्डिक्ट क्या है? फर्स्ट है जो कैटेगरी जिसमें डेविल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स दैट गोज इन द कैटेगरी ऑफ शिर्क, बिकॉज वो डायरेक्टली डेविल्स का इस्तेमाल होता है. Thus one would worship them and seek means of nearness to them in order to be able to unleash them against the bewitched. आप एक बार ध्यान में रखेंगे, जो जिन जिन्नात का यूसेज होता है ना, जो डेविल्स का यूसेज होता है, ये पूरा एक गंदा सा अमल है. इसमें आपको वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो अकीदा तौहीद के अगेंस्ट हो,
और उससे फिर शैतान और शयातीन जो हैं रादर अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, और जब आप सारी फॉर एग्जांपल नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम कुरान की बेहुरमती करते हैं और सारे फोबिडन एक्ट्स जब आप करते हैं, गुनाह गुनाह के बदतरीन अमल आपसे करवाए जाते हैं, फिर जाकर डेविल जब आपसे प्लीज्ड हो जाता है, फिर वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर वो आपके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जब तक आप उसको प्रोवाइड करते जाएंगे न्यू न्यू केसेस या विक्टिम्स, तब तक के आप भी सलामत रहेंगे। द मोमेंट यू स्टॉप प्रोवाइडिंग द विक्टिम्स टू द डेविल, आपकी जान भी ले ली जाती है। तो इट इज लाइक जान का सौदा होता है। बट पीपल अगेन लाइक हाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द शिर्क, कि वो आग का घड़ा है, लेकिन इंसेक्ट्स और मौत की तरह लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। तो उसी तरीके से people get into this activities for what? To gain power, to gain fame, to gain curiosity, उनका अपना जाती मफाद, पर्सनल गेन्स भी होते हैं। दूसरे नंबर पर इसलिए इसीलिए आई एवरी टाइम रिपीट के अज़कार, मॉर्निंग इवनिंग अज़कार, जिक्र, तहारत, इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखें। अपने आसपास के लोग जो हैं उनको इस तरीके से रखें जो आपको सही राह दिखाएं और गलत से आपको रोकें। बिकॉज ये शैतानी वसवस कई बार इट ऑल बिगिंस विद द थॉट, राइट? ये शैतानी वसवस इतना इतना आगे बढ़ जाता है कि ये आपको इवलिश से इवलिश एक्ट करने के लिए फोर्स कर देता है। सो कीप योर सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ जिक्र, ताकि आपके माइंड, आपके थॉट्स, आपके हार्ट के ऊपर जो है वो ये गलबा ना पा सके। अल्लाह आपको महफूज करे ये सब शर से। सो व्हाट हैपेंस इज दैट उनको ये पता होता है कि इसके क्या असरात होंगे या इसका एंड क्या है, येट वो अपना डिस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट फॉर समथिंग जो कि बहुत ही हकीर सी चीज होगी। उसके लिए वो अपनी जिंदगी, अपनी आखिरत का सौदा करने के लिए तैयार है। अब ये इस टाइप के जो लोग हैं, इनके साथ कहते हैं ना कि इनकी दोस्ती दुश्मनी भी भयानक है। मसलन अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन अ पर्सनल लेवल, कि अगर आपके जानने वालों में से कोई ऐसे लोग हैं जो इस ये सब चीज़ों में मुब्तला है, तो ट्राई टू डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम देम एंड ट्राई टू प्रे फॉर देम। डोंट गेट टू इन्वॉल्व, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है ना कहीं जाकर आपको अफेक्ट करेगी ही करेगी। दे विल इन्फ्लुएंस योर माइंड एंड थॉट्स। सो मेक श्योर कि आप जो हैं अपने अतराफ को साफ सुथरा रखें अपनी फैमिली के लिए, और अपने दीन को बचाएं, अपने अकीदे को बचाएं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो फर्स्ट वाला कैटेगरी जिसमें डेविल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उसमें डेफिनेटली विद द वर्डिक्ट इज शिर्क। व्हाट अबाउट द सेकंड कैटेगरी? Transgressions and wrongdoings. This is the second class which occurs through the use of substances and medicines and things like that. यानी इसका लेवल जो है वो पहले वाले के जितना इंटेंस नहीं, लेकिन बुरा उतना ही है, क्योंकि असरात होते हैं, उसके भी असरात होते हैं, और नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर ruining योर लाइफ एंड हियर आफ्टर। तो सॉर्सरर अनबिलीवर होता है कि नहीं, काफिर होता है कि नहीं? Of course, the people of knowledge differ in regards to this. Among them are those who say he's kafir. क्यों काफिर है? Because as we discussed, the moment somebody starts worshipping other than Allah, the moment somebody starts doing things that are forbidden in Islam, तो वो क्या होता है? उसने कुफर कर दिया। Sometimes there is a difference between the two. For example, if somebody doesn't pray, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, so the act is of kufr, but that person doesn't become kafir. Understand the difference. इसीलिए जब कोई, हम लोग जैसे मुफ्ती मोड में जब आ जाते हैं और किसी के ऊपर भी फतवा देने लगता है, ये काफिर है, ये वो है, ये है, I every time say don't become judgmental. लेकिन we are not supposed to be judgmental at all because we are not in that position. हमारे पास उतनी knowledge नहीं है। तो a person might do an act of kufr, but that person might not be kafir. But in this case, they literally worship devils. और ये जो नुकसान होता है ना ये मैजिक की वजह से, ये बहुत ग्रेव है। यानी किसी को जान की, माल की और इतनी ज्यादा अजियत पहुंचाना अपने दूसरे मुस्लिम ब्रदर को, तो डेफिनेटली gauging the intensity, it is considered that it is kafir. But again, there is a mixed opinion. So some say that he is not kafir.
they do an act of kufr but they're not kafir, some of them. sorcerer के बारे में बात हो रही है, but again इसमें हमने दो intensity discuss की है, right? The classification we mentioned clarifies the ruling on the matter. The one who sorceries through the devils disbelieves because he does not attain that except by the acts of shirk. तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब तक कि वो पूरी तरह से डेविल की इबादत नहीं, पूजा नहीं कर देते, तब तक कि वो उस लेवल पे पहुंचते नहीं है, तो डेफिनेटली ये तो शिर्क का काम हो गया, यानी मेजर काइंड ऑफ एन एक्ट हो गया. But the one whose magic is through the substances and the like does not believe, however he is considered a sinner and a transgressor. यानी इसने जो जिसने मेडिसिन और सब्सटेंसेस यूज किया, उसने लिटरली इबादत नहीं की, लेकिन वो चीजों का इस्तेमाल किया, वो फोबिडन चीजों का इस्तेमाल किया जिससे नुकसान पहुंचा, तो वो कुफर वाली एक्टिविटी में मुब्तला हो गया. बिकॉज ये शिर्क है और शिर्क अपोजिट ऑफ तौहीद है, इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. अब एक हदीस को, जो हम स्ट्रेट सिंपल हदीस को अगर लें, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever commits magic has committed shirk. सिंपल, मैजिक शिर्क. आप उसकी डेप्थ में मत जाएं कि चीजें इस्तेमाल की है तो सिर्फ कुफर होगा, ये होगा, वो डोंट गेट इनटू दैट. जैसे मैंने कहा, हमें एक्चुअल एक्ट नहीं, एक्चुअल एक्ट को भी जो लीड करे वो रास्ता भी नहीं लेना है, उससे भी आपको परे रहना है, इज्तनाब करना है. So why is it shirk? The reality of magic is using devils to affect people, but the devils won't help the sorcerer unless he becomes a servant to them by rebuking Islam and humiliating the Quran and Azbillah. We discussed this के इसलिए शिर्क है क्योंकि लिटरली जो जादूगर है उसने ये जिन जिन्नात और देवताओं की पूजा करनी है, और फिर उसके बाद उसने इस्लाम के सारे रूल्स को तोड़ना है और बेहुरमती करनी है कुरान की, और फिर ही जाकर वो डेविल्स को खुश कर पाएंगे, एंड देन दे गेट दैट थिंग व्हिच दे आर लुकिंग फॉर. For every spell, there is a devil that is serving it, and the magician can't be really a magician unless he has some devils to help him. Therefore, it is shirk with Allah Azza wa Jal. हमने इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी किए, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, एंड वी हैव ऑलवेज टोल्ड द सिस्टर्स कि कई बार, फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ सिचुएशन, लेट मी टेक वेरी कॉमन सिचुएशन, मसलन अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है या किसी की शादी नहीं हो रही है, आउट ऑफ डेस्परेशन आप खूब सारी इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद चल रही है, सब कुछ चल रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. किसी ने सजेस्ट कर दिया, उधर वो अमल करते हैं, एक पीर है, शेख है, वो कुछ करते हैं, तो आप उधर चलें, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस, अंडर द प्रेशर, अंडर इग्नोरेंस, वो बंदा उधर चला जाता है. अब आप मुझे बताएं, कहने के लिए जो बहुत कॉमन है, which I have heard lot of people even during my hijama and counseling sessions, I have come across people, उनसे पूछा जाए ना कि आप उधर क्यों गए, कहते नहीं, उन्होंने कुरानिक वर्सेस का इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया. अब ये लोग होते हैं ना, ये लोग बड़े शातिर होते हैं, दे आर लाइक कॉन मैन, ओके, फ्रॉड होते हैं ज्यादातर. व्हाट दे डू, आपको दिखाने के लिए, दे माइट बी रिसाइटिंग सम वर्सेस ऑफ कुरान इन फ्रंट ऑफ यू. कुरान पढ़ने के बाद फिर वो कुछ और, दे विल स्टार्ट ब्लैबरिंग समथिंग एल्स. यानी वो अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे थे, वो अपने डेविल्स और जिन्स के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं. दूसरा, जो चीज लोगों को बहुत माइल करती है, दे गेट अट्रैक्टेड इमीडिएटली टू. आपको पता होगा कि आपके हर इंसान इज बॉर्न विद अ करीन, देयर इज अ जिन व्हिच अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विद, करीन. अब इनका जो जिन डेविलिश जिन्स का जो कनेक्शन है वो करीन के साथ, हमारे करीन के साथ हो जाता है, दे विल प्रेडिक्ट थिंग्स, मसलन नॉट प्रेडिक्ट एक्चुअली, बट दे विल इन्फॉर्म हिम, क्योंकि गैबी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है. और अगर अल्लाह, अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इन्फॉर्मेशन देते थे, या अल्लाह ताला अगर किसी पे जाहिर करना चाहे, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू. बट ये क्या करते हैं, कारीन, आपके कारीन के साथ इनके जिन जिन्नात कनेक्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पूछते हैं. सो बिफोर यू इवन अटर एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये लोग आपके बारे में सब बता देते हैं. आपका घर उधर है, या आप इस परेशानी को लेकर आए हो, और सम इन्फॉर्मेशन दे विल गिव यू. दे विल मिक्स द इंफॉर्मेशन विद लाइज. और जो बंदा वहां पर आया वो बड़ा इंप्रेस हो गया, ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं. ये सारी मिस्टेक्स हैं. वी शुड, पहले नंबर पे तो जाना नहीं चाहिए. दूसरे नंबर पर, दीज आर द पॉइंट्स दैट शुडंट इम्प्रेस यू. ये सब जादूगर, ये सब गलत काम वाले लोग हैं.
ये आपसे आपकी माँ का नाम पूछेंगे, ये आपसे आपके कोई यूज्ड कपड़े, यूज्ड चीजें पूछेंगे, ये आपसे कहेंगे कि अभी हमें कुर्बानी देनी है किसी जानवर की, एंड उसका ब्लड जो है वो अल्लाह के, गैर अल्लाह के नाम पे होता है, ऑफ कोर्स शैतान की नाम पे बलि होती है। और दूसरा, वो सारे खुराफात करेंगे, वो ऐसी अजीब गरीब चीजें करेंगे कि आप जो है नोइंगली अननोइंगली एक गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। May Allah protect us, but I would again advise and urge and request कि ये सारी चीज़ों से कोसों दूर रहें और अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। So coming back to our topic, that yes, it is considered shirk because it is the opposite of tawheed, and for every spell there is a devil. Remember that. तो जो मैजिक शोज होते हैं जिसमें हैंड ट्रिक्स वगैरह होते हैं, what is it? Is it haram? It is haram and unlawful practice. However, hand tricks are not what is intended here. यानी वो तो एक entertainment और show के लिहाज से वो किसी को hurt या harm करने वाला intention नहीं है. But again, we are advised not to be involved in any sort of magics, even for entertainment or for harming or for anything. But we are not supposed to be involved in this. तो इसमें मैं एक आप लोगों को यानी रियल लाइफ में बताऊंगी कि हमारे घरों में बच्चे जो हैं वो जनरली किड्स गेट वेरी इंट्रीग्ड बाय दिस. नाउ अगेन इफ आई रिमाइंड यू ऑफ सूरत अल बकरा में जब हारूत और मारूत को भेजा गया था, दे वर सेंड विद अ पर्पस, वो आजमाइश थी, एंड लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, व्हिच मींस इट इज देयर इन आवर फितरा दैट वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिंग्स लाइक दैट. बट if you remember in the verses, they are saying that हम फितना बना के भेजे गए हैं, so don't learn this from us. यानी it has been clearly mentioned not to get into this practice, not to learn for whatever reason it may be. So keep away. तो हम लोग जो है घर में बच्चों को मैजिक शो या जो भी टीवी पे या नेट पे जो भी दिखाते हैं, try to keep it like to keep children away from that. Let them not get intrigued, क्योंकि हर एक चीज की जो शुरुआत होती है ना, बेस वो बचपने से होती है. तो अगर हमने ये कंसेप्ट या ये सारी चीजें बचपने में ही डिस्कस कर दी, बच्चों को बता दिया इसके बारे में, और हमने खुद वो एंटरटेनमेंट नहीं प्रोवाइड किया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी पेरेंटिंग का रीजन होगा. तो कीप योर किड्स अवे, कीप योर सेल्फ अवे, ज्यादा उधर अट्रैक्ट होने की हमें जरूरत नहीं है. कैन द मैजिशियन चेंज द रियलिटी ऑफ थिंग्स? इस नुक्ते को समझना बहुत जरूरी है. नो, मैजिक कैन चेंज द रियलिटी ऑफ थिंग्स, it will only affect the perception of the viewer. यानी in reality it doesn't change a thing. ये हमारे माइंड में illusion क्रिएट करते हैं. illusion को उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं आता. if anybody can help me with that, illusion को उर्दू में क्या कहते हैं? any उर्दू expert in the तखय्युल. अस्सलाम वालेकुम. सलाम जी. सोबिया बोले. तखय्युल कहते हैं, तखय्युल, इल्यूजन. ओके, जज़ाकिल्लाह खैर. तखय्युल कहते हैं इल्यूजन को. तो ये हमारे माइंड में जो है ना, ये इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं. ये एक्चुअली चेंज नहीं करते हैं, बट इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. इन अदर वर्ड्स, सॉर्सरी नो डाउट हैज एन इफेक्ट, but it does not change the particular essence of the things from one form to another. यानी उसके अंदर वो वाली पावर नहीं है कि वो एक्चुअल सेंस में कोई चीज को क्रिएट या चेंज कर सके, बट वो ऐसा इल्यूजन, तखय्युल क्रिएट करते हैं कि आपको ऐसे लगता है कि ये हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कैन टेक लेसन फ्रॉम हदीस, जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक ज्यूइश ने मैजिक किया हुआ था, तो ही यूज्ड टू थिंक दैट ही हैड रिलेशन विद हिज वाइफ, बट इन रियलिटी ही डिडंट. यानी आपके दिमाग में वो वैसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं. इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज हमें क्या बिलीव, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है कि नो वन हैज द एबिलिटी एक्सेप्ट अल्लाह अज़्ज़ा व जल. ही ओनली थिंग्स, जब कोई स्पेल में होता है ना, तो उसे ऐसे लगता है कि उसने कुछ किया है या कुछ चेंज हुआ है, बट इन रियलिटी इट डज नॉट चेंज. ऐसा लगता है कि कोई चीज मूव हो रही है, कोई चीज उड़ रही है, कोई आपको दिखाई दे रही है चीजें आपके दिलों के अंदर जो है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत कॉमन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कराया जाता है, तो यू फील इट, आपके अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वो होपफुलनेस खत्म होता है. तो ये सारी चीजें उसकी इफेक्ट के अंदर. इवन मूसा अलैहि सलाम का अगर किस्सा लें कुरान से, तो इट सीम्ड लाइक कि जब उन लोगों ने जब दूसरे जादूगरों ने फेंका, तो लगा कि जैसे कि वो सांप है, बट एक्चुअली वो था नहीं. इट वाज एन इल्यूजन. द रोप्स वर मूविंग एज इफ इट वाज द स्नेक, बट इट वाज एन इल्यूजन क्रिएटेड. Whereas
मूसा अलैहि सलाम ने जब अपना असा फेंका तो वो एक्चुअल स्नेक में था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैजिशियंस इमीडिएटली न्यू कि जो मूसा अलैहि सलाम के पास है वो हक है, एंड उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो मैजिक क्या लोगों को इफेक्ट करता है? यस, इट हैज एन इफेक्ट ऑन देयर बॉडीज, ऑन द इंटेलेक्ट्स एंड द हार्ट्स, but again it could not harm without the permission of Allah Azza wa Jal. Again, I don't want you to feel कि Allah Azza wa Jal हमारे लिए harm क्यों allow करते हैं. जैसे मैंने कहा, अगेन आई रिपीट, हर शर के पीछे खैर है, एंड हर एक आपको कांटा भी अगर चुभेगा तो उसका कॉम्पनसेशन अल्लाह हैज फॉर यू. सो अगर आप सब्र करते हैं और आप वो काम करते हैं जो करने वाले हैं और उस कामों से बचते हैं जो नहीं करने वाले हैं, तो आपके लिए इमेंस अजर है. सो रिमेंबर दैट. Always thank Allah, always have tawakkul on Allah. Never have any negative feelings for Allah Azza wa Jal. And how to protect from magic, हमारा एक chapter आने वाला है आगे, An-Nushra, inshallah we'll discuss in that. And what is the punishment of the magician in this life? The penalty of magician, जो जादूगर है उसकी penalty है to kill them without repentance, without उनकी forgiveness या इस्तगफार कबूल करे, उनको मार देने का हुक्म है. बट ऑल्सो अंडरस्टैंड ये हमारे हाथ में नहीं है. जहाँ पर शरिया कानून लागू होता है, जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज है, ओनली दे कैन डू दैट. बट इन जनरल वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूलिंग. तो ये जो है इनका जो कत्ल वाजिब है. अगेन इफ यू रिमेंबर, मुर्तद जो है, मुर्तद लोग जो दीन से मुस्लिम होकर फिर दीन से फिर जाते हैं, उनके लिए भी कत्ल वाजिब है, इसके लिए भी कत्ल वाजिब है. व्हाई डू यू थिंक? बिकॉज दे आर आल्सो आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम, एंड अगेन द डैमेज जो ये करते हैं दूसरे मुस्लिम्स पर, intensity is high. That's why the punishment is also grave, and it is matching with murtad category. Surah number 2, Surah Baqarah, verse number 102. And indeed they knew that whoever purchased it, यानी जिसने भी sorcery में जो मुब्तला हुआ, would have no share in the hereafter. यानी clear है कि उनको आखिरा में कुछ नहीं मिल रहा. Whoever purchased it का मानी है कि जो इसको सीखता है, they will have no share in the hereafter. यानी उन्होंने अपनी जिंदगी का बर आखिरा खत्म सब बर्बाद कर दी. किस चीज के लिए? समथिंग बहुत नेग्लिजिबल, बहुत हकीर चीज के लिए उन्होंने इतनी बड़ी चीज खो दी. However, it may either be a complete denial of share, which would imply that the action is a disbelief, or a negation of the perfection of share, which then means that it is a wrongdoing. यानी आप किसी भी एंगल से ले लें, किसी भी अप्रोच की तरफ चले जाएं, what is wrong, and उसका end जो है वो बड़ा ही भयानक है. May Allah protect us. The Jews were among those who surpassed others in learning and mastering sorcery, claiming that Sulaiman alayhi salam taught them. And although they had knowledge and they knew that what they are buying is falsehood and what they are leaving behind is the truth, the teachings of the messengers, yet they bought it by learning it and practicing it. यानी इसमें एक एग्जाम्पल फ्रॉम द कुरान इज कि ज्यूज जो है उनको पता था कि ये कितना भयानक है, स्टिल उन्होंने इसको सीखा, उसमें मास्टरी की और उसको आगे लोगों को सिखाया भी. लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए जो है बर्बादी खरीदी है और कुछ भी नहीं. Another surah number 4 verse 51, they believe in al-jibt and at-taghut. Again we had quoted the same verse. Umar said al-jibt is magic and at-taghut is the devil, shaitan. Jabir said at-tawaghit, the plural of at-taghut are kuhan, fortune tellers. The devil, shaitan, is to descend to them, and one of them is to be उसके मैजिक एंड सॉर्सरी और ये सारी चीजें जो है मिली जुली, एस्ट्रोलॉजी, फॉर्च्यून टेलिंग, पामिस्ट्री, गोइंग टू द पीपल टू आस्क हमारे फ्यूचर में क्या है, ये सारी चीजें जो हैं ये लीड करती हैं शिर्क को. और शिर्क का क्या है? बर्बादी बर्बादी. So Egypt again, it is magic. In Arabic, it refers to idols, sorceries, and soothsayers. यानी मूर्तियां, idols, okay. उसके बाद जादू, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी जो फ्यूचर आपका सो कॉल्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, एक्चुअली वो एक सच में 99 झूठ मिलाकर आपको देते हैं और उसमें आप बिलीव करने लगते हैं. And तागूत we have again discussed.
In Arabic, it is derived from the verb tagha, meaning to exceed the proper limits. And this applies to many things as we have discussed earlier. और काहिन जो And sorry, Nasreen, in between, आज की तारीख में, you know, these people who Gemini and star signs पढ़ना, yeah, that, oh, I know you're Gemini, so these are your this thing. So this is also completely wrong. Can this be taken lightly? see, I've read इसका जो detail में जब when we went into the astrology. Now understand the difference, difference here. Astrology is a science. Okay, astrology is a science, which means if you are born in a particular timing, you belong to a particular category of star sign. अब आपकी जो characteristics या सिफत जो होगी, it will vary from person to person depending on that category. But believing that according to the calculation, I will come to know about my future, that is wrong. Like I'm not telling you कि आप astrology के बारे में पढ़ें, but knowing certain characteristics of a certain star sign is not wrong because it's a science. आप इसको deny नहीं कर सकते. मसलन different temperaments के लोग होते हैं ना, कोई different temperament का है, कोई different temperament का है. So again, that is a science. But predicting the future is wrong. Oh, got it. अभी आजकल जैसे फेसबुक के अंदर there are lot of games circulating. अभी recently I was informed by my husband कि there is a app going on जो आपकी palm की फोटो लेता है और फिर आपका future predict करता है. All these things are wrong. जहां पर future prediction, anything about गैब इल्म, वो अगर बताने शुरू कर दे कोई चीज या कोई शय, then it is wrong. But in general, as a science, it is not wrong. But again, I will not encourage somebody to learn or study star signs because eventually it will lead to something wrong. तो उसमें शिर्क की तरफ, कुफर की तरफ, गुनाह की तरफ हमने नहीं जाना है. तो we have to close, we have to push ourselves or pull ourselves rather away from these things. But in general, it's a science. So you cannot deny that it is not a science. It is a science, but believing or using it to predict future is wrong, definitely. Okay. All right. Coming to our point here. So we learned about taga meaning to exceed the proper limits. And it applies to many things as we have discussed. And then again, kahin, soothsayer and fortune teller. जैसे वो टैरोट कार्ड रीडिंग है, आप लोगों को उसके बारे में पता होगा. बहुत सारी चीजें होती है, कॉफी मग रीडिंग है, डिफरेंट चीज होती है. पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, कि हम डिसीजंस क्या लें. अब बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास ऑलरेडी अच्छे खासे टूल्स हैं. मसलन you can do istikhara, you can pray, you can make salat al-hajat. आप बहुत कुछ जो शरिया के दायरे के अंदर है वो आप कर सकते हैं. बट हमें चाहिए होता है शॉर्टकट, हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चाहिए होता है अस्तगफिरुल्लाह लाजिम जिसमें गुनाह शामिल हो. तो हमको अपनी ये जो डेविलिश हमारे अंदर जो ये नफ्सल अम्मारा है ना, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना पड़ेगा. एंड अगेन आई रिपीट हियर फॉर द यंग टीनेज गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, कि अपने आप को ऐसी कंपनी में रखें जो आपको इस तरफ ना ले जाएं, इस तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें गलत तरीके से. एंड अगेन, if you are doing your morning evening zikr and you are staying in that condition of seeking Allah's protection and staying under his shade, so inshallah Allah will protect you, because the whole world is a big fitna right now, and fitnas हमारे fingertips पर हैं. यानी आप चाहे या ना चाहे वो आपके सामने पॉप अप होती है, इतनी खतरनाक फितना है. and this is one of the reasons now I'm just sharing my personal thing again कि कहीं ना कहीं जाकर आप इस चीजों में मुब्तिला हो जाते हैं. last 2.5 to 3 months I am off Facebook, off Instagram, off YouTube, off those social media because of these sole reasons. Because इतनी चीजें in regards to this fortune telling और ये और वो चल रहा है कि you don't want to be a part of it. You rather stay away from it. Because again हमारी कोशिश क्या होती है to block it. क्योंकि शैतान की कोशिश ये है कि जो आप drop by drop collect कर रहे हैं नेकियां, वो एक leak in the bucket करे, वो एक hole करे और सब जाया हो जाए. So earning your nekia is not difficult, but holding on to it, maintaining it is real tough. तो मैं आपसे बार बार यही रिमाइंड करूंगी, जितना हो सके फितनाओं से बचें, जितना हो सके. ये अलग अलग पैकेजेस में आपके सामने आएंगे और आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं, ये तो गेम है, ये तो वो है, ये तो ये नथिंग डूइंग. गलती से भी गलती ना हो. Okay, coming back to our subject now, there is another hadith
Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, avoid the 7 destructive sin. It is called al-mawbiqat. They said, O Messenger of Allah, what are they? He said, ashirk, magic, killing a soul that Allah has made sacred, except with the right to do so, taking interest, taking the wealth of a orphan, fleeing on the day of battle, and making a false accusation against a chaste believing woman of adultery. यानी ये 7 हलाक कर देने वाले सिंस हैं. इसमें हम लोगों का जो पॉइंट है वो है मैजिक वाला पॉइंट. So these things that will destroy the person absolutely in this life and hereafter. The Prophet ﷺ said, Ijtanabu, avoid, which is stronger than saying leave. यानी leave जो word है वो थोड़ा lesser degree का है, but ijtanabu is avoid. इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि छोड़ना तो of course हम कहेंगे हम तो involve नहीं है magic में, लेकिन indirect ways और indirect रास्ता भी अगर है ना तो उसको भी हमको ब्लॉक करना है. एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. यानी हमें ये सारे कंसेप्ट जो है ना अपने बच्चों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर लाइल्मी में वो बेचारे इनोसेंट होते हैं, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप अ चेक एंड पुट अ ब्लॉक देयर. तो when the messenger is using that certain terminology, वो हमको इंटेंसिटी बताता है कि कितना ग्रेव है ये sin. So it is not just leaving, it is avoiding. Yes, somebody has anything to say? Sure, I will put it there in the group. Okay, so sorcery apparently, the statement of the Prophet ﷺ shows that there is no difference between the sorcery done through the devils and that by the means of substances and medicine. जैसे मैंने आपको कहा कि learning sake के लिए it is okay to understand that there are 2 types. कि भाई एक जगह पे devil use हो रहा है, एक जगह पे medicine use हो रही है, तो devil वाला is shirk और medicine वाला is permissible. Of course not. अब इस हदीस को अगर हम लें तो देयर इज नो सेपरेट कैटेगरी. एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, वो मेडिसिन को भी अगर पहुंचाना है उसमें डेविल्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो डेविल्स का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो अगेन इट गोज बैक टू कैटेगरी 1 व्हिच इज द शिर्क वाली कैटेगरी. सो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन, अपने आप के साथ हिलाबाजी ना करना कि हम ये नहीं कर रहे, हम वो कर रहे, नहीं कर रहे हैं. आप हम उधर जा ही नहीं रहे. जिस गली में हमने जाना नहीं उधर का रुख करना नहीं. डोंट कंसिडर एनीथिंग, इट इज ऑल रॉन्ग. There is no difference between getting it done through devils or through the medicines, because if it is through the devils, then whatever is achieved by taking them as partners with Allah Azza wa Jal, then this certainly falls under major shirk. एक बात ध्यान में रखें, magic, major shirk, that's it. उसमें कोई दो राहें नहीं. And if it is less than that, then also it is a serious crime. Since sorcery is among the greatest form of wickedness against humans, it destroys the religion and worldly affairs of the bewitched, troubles him and lets him suffer distress to the extent that only Allah knows. Consequently, sorcery directly follows shirk because of its evil, destructive nature. So आप देख लें कि finally, consequently, sorcery directly shirk की तरफ जाती है जो destructive है. तो जिसके ऊपर जादू कराया जाता है उसकी भी लाइफ बर्बाद की जाती है. एंड इवेंचुअली जो करता है मैजिशियन और जो करवाता है वो भी कोई आबाद नहीं होता. If I may discuss, I've got loads of personal stories in regards to magic, but we run short of time here. But inshallah, I will eventually discuss it. The Prophet ﷺ commands his followers not to approach these 7 deadly sins. These sins are the greatest of the major sins and will destroy the one who practices them in the life and the hereafter. And although magic is a kind of a shirk, yet the Prophet ﷺ mentioned it in particular to point out its grave dangers. So, क्या डिस्ट्रक्टिव सिन सिर्फ ये 7 है? नहीं, देयर आर मेनी, बट ये जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है. और आप देखें यानी देयर इज अ विजडम बिहाइंड एवरीथिंग. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्यू how his ummah is going to be in regards to their amal, in their deeds, in their interest and things like that. As a teacher, you know, teacher has some wisdom and knowledge. So he was the best teacher. He knew how his ummah is going to be. तो उस लिहाज से उन्होंने वो वाले sins point out किए जो बहुत easily हम लोगों को entrap कर सकते हैं. So that is the reason. But of course, these are not the only 7 destructive sins. There are many. But ये जो हैं ये बहुत common और बहुत attractive और बहुत ज़्यादा हलाक कर देने वाले हैं और इसको इंसान जो है बहुत लाइट लेता है. So don't take it light. This is the whole idea. कि इससे
इज्तनाब करें, avoid any roads leading to it. So what's the punishment of the sorcerer? As per the prescribed punishment, had of the magician sorcerer is striking him with the sword. Kill, 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 kill. यानी नो माफी की गुंजाइश एंड किल. अब ये पनिशमेंट से अंदाजा लगा लें. In Sahih Bukhari, Bajala bin Abada narrated, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wrote, execute every sorcerer or sorceress. So Bajala continued, we executed 3 sorcerers. In fact, मैं कुछ documentaries भी मैं सऊदी की देख रही थी अभी, तो उसमें भी they keep on discovering the sorcerers. तो उन्होंने क्या करते हैं ये लोग, जैसे मैंने आपको बताया ना कुरान की बेहुरमती करते हैं, तो ये बहुत सारे कुरान की बुक्स जो मसहफ हैं उसको धागे बांध बांध के, अल्लाह माफित अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, ये गटर ड्रेनेज के अंदर डाल कर रखा हुआ था. तो ये जो एक पर्टिकुलर टीम है उनके औकाफ की, सऊदी की एक पर्टिकुलर टीम है, ये कंटिन्यूसली दे आर हंटिंग फॉर दो सॉर्सरर्स. यानी वो ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसे अमल है, क्या है. दे बाकायदा दे रिकॉर्ड इट, दे टेप इट, दे रिलीज इट एंड दे कैच द सॉर्सरर्स एंड दे एग्जीक्यूट देम. बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पर शरिया कानून नाफिज है तो हो ही जाता है. बट इमेजिन दिस इज वेरी एक्टिव. यानी अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो सिलसिला है तो ये चल रहा है, बट अदरवाइज ये चीज फ्रीली मूव हो रही है. इफ यू आस्क मी कौन सी कंट्री या कौन सी कम्युनिटी, आई विल टेल यू एंटायर वर्ल्ड इज मुब्तला इन दिस. यू मे पर नॉट. उसमें कुरान को इंसल्ट करने की क्या जरूरत है? कुरान, मैंने आपसे कहा ना कि कुरान और दीन की चीजों को जब वो इंसल्ट करते हैं तब जाकर शैतान उनसे प्लीज होता है. यानी वो लोग अल्लाह माफी दे अस्तगफिरुल्लाह लाजिम नौजुबिल्लाह कुरान को पैर में रखकर चलते हैं. ओके, उसके बाद वॉशरूम में लेकर जाते हैं. उसके बाद पीरियड्स का जो ब्लड है उससे अस्तगफिरुल्लाह लाजिम कुरान के ऊपर लिखते हैं. उसके बाद वो जिना करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी बेटी, यानी वो फोरबिडन जो हमारी वॉल्स है ना, जिसको कहा गया है कि ये हद को क्रॉस नहीं करना, वो सब करते हैं. कत्ल कर देते हैं, बहुत अपना क्या कहते हैं यूरिन पीते हैं, अपनी फीसेस खाते हैं, अपने पीरियड के ब्लड को भी पीते हैं. लाइक there are so many disgusting things. I feel so awkward talking about it right now during fasting. But वो ऐसी सारी गलाजत की चीजें करते हैं और खाते हैं और पीते हैं. इसके बाद जाके शैतान gets pleased with them and finally they are out of the fold of Islam. वो बिल्कुल खारिज हो जाते हैं. They are no longer Muslims and believers. फिर जाकर वो उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है शैतान के साथ. So that is the reason that they keep doing spells and things like that. हरकतें उनकी ये होती है. और मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि sometimes you may not even realize it. ये लोग जो होते हैं ना, ये फेक एक इमेज लेकर घूमते हैं. मसलन they will be very, you might see somebody very pious, you might see somebody praying and reciting Quran and things like that, but उनका real रूप अंदर से कुछ और होता है. अल्लाह आलम में, अल्लाह प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सच कैरेक्टर्स एंड कीप अस अवे. बट ये फेक करके चलते हैं अपना एक इमेज, और फिर बाद में जाकर ये अपने, एज आई टोल्ड यू, वो अपने विक्टिम्स तलाश कर रहे हैं. एंड कई बार इवन आई हैव नोन पर्सनली फ्यू ऑफ सच केसेस जहां पर इनको विक्टिम्स नहीं मिलते हैं तो ये अपनी फैमिली की भी बलि चढ़ा देते हैं. यानी ये अपनी वाइफ, अपने बच्चों की भी बलि चढ़ा देते हैं शैतान के सामने. बिकॉज ये सर्वाइवल की बात है कि उनका जो मुआहदा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ये होता है कि अनलेस दे प्रोवाइड केसेस टू देम. अब वो केसेस क्यों चाहिए शैतान को? बिकॉज शैतान ने अल्लाह से वादा किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तौहीद से हटा के जहन्नम में फेंकवाना है, उसको शिर्क करवाना है बेसिकली. तो उनकी वो जंग है, तो वो मैक्सिमम लोगों को इसमें मुब्तला करके आउट ऑफ इस्लाम करके जहन्नम तक पहुंचाना है. तो ये अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हमारी जद्दोजहद, ये हमारा जिहाद है कि हम सही सिरातल मुस्तकीम पे रहे, हम अल्लाह को पकड़ के चलें, हम हमारे नबी की टीचिंग्स को पकड़ के चलें. तो ये हमारी जिहाद है. इस जिहाद में हमको 1 या 2 दिन नहीं, कंटिन्यूस 24/7 जब तक हम हयात हैं तब तक अपने आप को बचाना होगा हमें, एंड हमारी फैमिली को भी इंशाल्लाह. सो दैट्स द रीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ, ईमान. Okay, so the prescribed punishment is killing them without any explanation. The sorcerer should be killed regardless of whether we hold that they are unbelievers or not. This is because they bring about illness, death, and they cause separation between the man and wife. Some of them may bewitch a person in order for them to be attracted towards him, and so he gets whatever he wants, such as bewitching a woman to commit adultery with her. Yani, there was another documentary we had watched. It was based, Iraq based actually. तो उसमें जो है स्टोन्स रिलेटेड मैजिक का था. तो वो ऐसे ऐसे स्टोन्स हैं
कि अगर वो फॉर एग्जांपल लोग जो करते हैं और जो करवाते हैं उनके इंटरव्यूज हैं, तो अगर किसी के ऊपर कोई अट्रैक्ट हो गया कोई आदमी, अब उसको वो औरत को पाना है, तो वो जो मैजिकल स्टोन है ना, वो सिर्फ उसको अगर टच कर जाए ना, तो वो उसके प्यार में दीवानी हो जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन हाउ डेंजरस दिस थिंग्स आर। तो यानी अगर वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, और ये आदमी ने उसको नजर में रख लिया एंड उसने ये मैजिक वाला स्पेल वाला स्टोन यूज कर लिया, तो वो उसको टच कर गया और वो उसके पीछे पागल हो गई, ही कमिटेड एडल्टरी एंड दैट्स इट, एंड उसकी लड़की की जिंदगी खराब। अब आप देखें उस लड़की का कसूर क्या था उसमें, बट जिसने कराया उसकी जिंदगी आखिरा खराब। और ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें, यानी वी डोंट इवन अंडरस्टैंड एंड नो, दैट इज द रीजन। यानी अगर आप डेप्थ में जाएं कि इस्लाम की हुदूद या इस्लाम और सुन्नत की जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करें, आप अननोइंगली उसके बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे। मसलन औरतों के लिए हिजाब, शाम को अकेले निकलना नहीं, मतलब जो औरतों के लिए जो परमिसिबल एंड नॉन परमिसिबिलिटी वाले जो हुदूद बने हुए हैं, इट इज फॉर योर ओन प्रोटेक्शन, बिकॉज यू विल सी हाउ डैमेजिंग एंड हाउ डिस्ट्रक्टिव दिस थिंग्स कैन बी अगर हम इसको ना फॉलो करें। और अगर हम फॉलो करते हैं तो इसमें हमारी भलाई है। May Allah protect us and all of us and all our families, but there are too many things that we are not aware of. और क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो इसलिए आई एम एवरी नाउ एंड देन हंटिंग एंड सर्चिंग न्यू थिंग्स, एंड वट एवर आई कम अक्रॉस ऑफ कोर्स आई कीप शेयरिंग। बट मेरा मकसद आप लोगों को अगेन डराना नहीं है, लेकिन आगाह करना है। डोंट बी fearful बट बी केयरफुल। ओके, तो प्लीज अल्लाह के साथ पे भरोसा, तवक्कल अल्लाह के ऊपर, लेकिन टाई योर कैमल। ओके, टाई योर कैमल एंड देन तवक्कल। सो द पनिशमेंट इज अगेन वेरी डेंजरस, बिकॉज इसके जो असरात हैं जो ये गुनाह के, वो भी बहुत ग्रेव है। सो इवन इफ दे रिपेंट और समथिंग, इट डजंट वर्क, because their atrocious activities cannot be undone. So whenever they are caught, the prescribed punishment is implemented upon them. It is same for male and female. There is no difference. So यानी जिस तरीके से इनका गुनाह प्रूव हो जाता है, बिना माफी के, मेल हो या फीमेल हो, उनको कत्ल कर दिया जाता है, बिकॉज दे आर डिसबिलीवर्स, दे आर मुशरिक, एंड देयर इज नो consideration at all. Learning sorcery also without practicing it is considered shirk. यानी अभी अगर कोई और कोई दलील करे मैं सिर्फ सीख रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, no, even that is shirk. And how can you recognize a sorcerer? अभी एक लिस्ट है, मैं आपके सामने quickly read करती हूँ just for your knowledge, but ये बहुत important है. So how can you recognize a sorcerer? Number one, he might ask for the mother's name. वो आपके मॉम का नाम पूछेंगे. He might inform the patient about his name, his country's name and problem even before he is seeking the solution. यानी आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया, कारिन के थ्रू उनको मिल जाती है. He might ask the patient to bring some of his things, मसलन अपने बाल या अपने नाखून या अपना कोई इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा. उसके बाद एक तावीज़ बनाएंगे, और तावीज़ के अंदर नॉर्मली कोई नंबर्स या लेटर्स, लाइंस, ड्राइंग, स्क्वायर्स, ये सब होते हैं. उसके बाद वो कुरान को लाउड में पढ़ेंगे, फिर धीरे से कुछ और विस्पर करेंगे जो आप नहीं सुन सकते. आपको सुनाने के लिए कुरान की वर्स पढ़ेंगे और फिर धीरे से कुछ ब्लैबर करेंगे. दिस इज वन ऑफ द ट्रिक्स. जैसे वो लोगों को डिसीव करते हैं कि भाई हम रुकिया शरिया कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर डूइंग रुकिया शिरकिया. और कुछ चीजें वो आपको देंगे कि जाकर आप इसको गाड़ दें अपने घर के आगे, आपके सहन में और समथिंग लाइक दैट. या फिर कोई पेपर देंगे और कहेंगे इसको आप बर्न करके इसकी धुनी लीजिए. और फिर उसके बाद वो पेशेंट को कहेंगे कि कुछ टाइम तक पानी में हाथ ना डालें, और आपको कहेंगे कि एक बकरा ज़िबा कर दें, या ये कुछ ना कुछ ज़िबा करवाने के लिए आपसे कहेंगे. सॉरी, वो पेपर बर्न करके क्या करेंगे? धुनी लेनी, धुनी. They will ask you to burn the Okay. papers and ask you to just take the this thing. The smoke. Yeah. उसके बाद वो जो है आपको फोन पे भी, they can call you on phone and remotely also they will try to influence you. मैंने ये भी देखा हुआ वैसे, फोन पे दम कर रहे हैं. I don't know how does it work, but they do that. Some might ask the patient to bring difficult things, and when the patient is unable to bring these things, the sorcerer might tell him, then I will ask the king of jinn to bring these things that we desperately need for your healing.
यानी कुछ ना कुछ अजीब व गरीब, बिल्ली का पंजा, मुर्गे की चोंच, मतलब आई डोंट नो, सम अजीब व गरीब चीजें जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होगी, तो वो आपसे वो सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम मंगाएंगे अजीब व गरीब, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड देम, देन दे विल गिव यू अनदर झूठ कि हम जो है अपना किंग ऑफ जिन से मंगाएंगे वो सारी चीजें, और आपसे जो है वो पैसे बटोरेंगे। फिर वो आपको और कहेंगे कि यानी दे माइट ऑल्सो स्लॉटर एन एनिमल गैरुल्लाह के नाम पे, और उसका ब्लड जो है वो अपने ऊपर और अपने पेशेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स थ्रू विच वन कैन रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ सॉर्सरर्स, ये जो गलत जादू टोना करने वाले लोग हैं। मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस एंड आवर फैमिलीज फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल, और इस तरह के फितना और शर से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, एंड ये आपको शायद लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ट्रस्ट मी, कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन। ये इतनी कॉमन है, इतनी कॉमन है कि आप, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस हु कम फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, ये गली गली में, बॉम्बे में मैं ट्रेन में व्हेन आई सी देयर आर मे बी 10 to 15 एड्स ऑफ दिस काइंड ऑफ जादूगर। आपको जॉब चाहिए, आपको शादी करना है, आपको ये होना है, आपको वो, मतलब कामयाबी चाहिए, कम टू दिस बाबा, बंगाली बाबा एंड व्हाट नॉट। सो जस्ट इमेजिन, चप्पे चप्पे पे ये लोग मौजूद हैं। हाउ टू प्रैक्टिस मैजिक, गूगल के ऊपर बुक्स आर अवेलेबल। इमीडिएटली पीपल गेट इंट्रिग्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों के साथ डिस्कस करना है, बहुत ज़रूरी है। स्कूलों में ये ऊजा बोर्ड वगैरह नहीं होता है, ऊजा बोर्ड, दे वर कॉलिंग द स्पिरिट्स। हर स्कूल के अंदर ये पंगे चल रहे थे कुछ साल पहले। तो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम दिस फितना, एंड उनको अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी, जितनी अवेयरनेस करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। बाकी तवक्कल अल्लाह, मेक लोड्स ऑफ दुआ दैट मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, बिकॉज हमारी भी एक हद है, उसके आगे हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद करते हैं, क्यूरियोसिटी, दे आर एंशियस, दे वांट टू नो व्हाट इट इज़, एंड ये बहुत आम है, बहुत कॉमन है, जितना कि आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा कॉमन है। तो इसीलिए सिर्फ मेजर मेजर काम के लिए भी नहीं, लोग छोटी से छोटी चीज़, जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन कराना है, अपनी ब्यूटी को रिटेन करना है, ये सारी चीज़ों के लिए भी लोग मैजिक कराते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि आप कौन से सलून में जाते हैं। अभी सलून का नाम मैंने लिया तो देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट विच आई माइट डिस्कस व्हेन वी हैव इनफ टाइम। लेकिन आप कहाँ जाते हैं, कौन से लोग आपको टच करते हैं, कहाँ, कौन आपके थेरेपिस्ट है, कौन आपके हीलर्स हैं, कौन आप जिस किसी के भी साथ डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ treatment. Okay, now I'm not talking about the allopathy doctor, that's a different ball game. I'm talking about you go to certain healers, like for example, now I'm forced to mention here, if you're going for hijama, also make sure the person is a good believer and practicing Muslim and has some knowledge about it. And otherwise also मसलन जो forbidden therapies रहेगी, let me pinpoint, रेकी वगैरह में मुब्तला ना होना, रेकी and all those things, जो energy healing वाले concepts हैं, stones and things like that, don't get involved in that, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ये सब एनर्जी हीलिंग और ये कुंडलिनी एंड द थर्ड आई ओपनिंग, ये सब गलत वाले काम है। सो अगर इसके अलावा भी किसी के अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ यू कैन मैसेज मी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली कुवैत में भी मौजूद हैं। सो यस, बी केयरफुल, डोंट बी फेयरफुल बट बी केयरफुल। एनी क्वेश्चन? Okay, then I think it's time for us to, yeah, yes, Jivana. Okay, two things. एक बार अगर किसी पे मैजिक किया गया and if the person leaves the place, यानी for example कुवैत में किया गया and the person travels out of Kuwait, वो मैजिक का असर रहता है? Is it? Because I've heard यानी travel करो तो नहीं होता. How does it work? Number one. Number two, जैसे आपने कहा फोन पे करना, तो किसी पे यानी फोन पे किया, this things work? Okay, there are different types of things or different types of magics actually. एक होता है place related, एक होता है person related, यानी it depends how intense and how strong it is. But you have to understand one thing, that magic जो है ना, magic, it says, they say that अगर एक particular place पे एक weaker वाला magic किया गया हो, तो if you change the place तो वो इतना long distance पे it doesn't work. But let me tell you, these things are not time bound or place bound.
even though we might sometimes think that okay ये हम travel कर गए हैं तो इसकी magic का असर खत्म हो गया है, but they are very deep rooted. They are very deep rooted. If they are person based ना, तो वो person जहाँ जहाँ travel करता है उसके ऊपर उसके असरात नजर आते जाएंगे. Okay. Place related, if I want to just mention here, like for example कोई जिन का डेरा है, उधर कोई आकर रहता है और उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो दे आर आउट टू रिवेंज या दे आर आउट टू ड्राइव यू आउट ऑफ दैट प्लेस. सो इफ यू चेंज द प्लेस, देन खलास द प्रॉब्लम इज सॉर्टेड. अनलेस अ पर्सन उसके ऊपर वो क्लिंग कर गया, अगर वो उस पर क्लिंग कर गया तो wherever the person travels, the thing is still there. But it again depends कि किस टाइप का मैजिक किया गया है, क्योंकि आप एक बार ध्यान में रखें कि ये जिन जो है ये it's not difficult for them to travel. Okay, it's not difficult for them to travel. कोई वीजा कोई एयर टिकट का इशू नहीं है. They can move places in a jiffy. And आपका जो कारीन है वो still active है. Okay, so that is the reason why I keep saying azkar, sharia ruqya, your tahara, your zikr, your azkar before sleeping. Okay, अपनी नमाजों की यानी अपने फर्ज अपने सुन्ना को इंटैक्ट रखना, अस्तगफार, सदक़ात, You have to be protected, yani. protected, yeah. Carry a shield with you. Zamzam, ajwa dates, ये सारी चीजें जो है ना, बखूर, ये सारी चीजों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना. Because rather than getting into the depth of मुझे क्या हुआ है, किसने किया है, इसकी अभी असरात है नहीं है, I would say just protect yourself. अपने एंटीडोट्स लगाते जाओ, irrespective of what viruses and bacteria are attacking you. अपने आप को प्रोटेक्ट करते जाओ and don't think too much. उसके बाद अगेन माइंड का गेम है ये. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अपने दिमाग पे इसको हावी होने मत दो. दूसरा, फोन पे एंड रिमोटली, यस ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंस ऑन द फोन एज वेल. एक केस था, अगेन आई विल पुट इट इन द बकेट ऑफ डिस्कशन, कि थ्रू इंटरनेट हुआ था. The magic, the spell happened through the internet. It popped up and because they resort to the mode of communication that we take. तो phones हो गया, internet हो गया. Not allowed in Islam. It does work. Magic. ठीक है ना? Yes. Anybody else? Okay. Any other raise hands? कुछ है और question के inshallah we'll meet tomorrow then. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.